بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ویورز، آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں جن کے لیے آپ کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری یہ دعا قبول کر لے، ہمارے لیے دعا کرے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جو جائز حاجات ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ جو لوگ بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بیماریوں سے نجات دلائے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دے، نعمت اور رحمت دونوں سے نواز دے۔ اور جو لوگ رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کو کھلا رزق اللہ عطا کرے، تو ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرمائے۔ اور جو قرض کی پریشانی میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ قرض اتارنے کا وسیلہ بنا دے، آمین۔ ویورز، آپ لوگوں کی پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی کتنے زیادہ میسج آتے ہیں کہ ہم لوگ بہت مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں، ہم بہت زیادہ پرابلم میں پھنس چکے ہیں۔ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہم اس پرابلم سے باہر نکل آئیں۔ اور اسی پرپس کے لیے آپ مجھے دعاؤں کے لیے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے پلیز دعا کریں کہ ہم بہت پریشان ہیں۔ تو دعا تو اسی ٹائم میں کر دیتی ہوں جس ٹائم آپ کا کمنٹ میں ریڈ کرتی ہوں، آپ کا میسج آتا ہے تو میں ریڈ کرتی ہوں، تو آپ کو اسی ٹائم اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا کر دیتی ہوں۔ چاہے آپ کو رپلائی میں نہ بھی دعا لکھی جائے لیکن اللہ سے مانگ لی جاتی ہے۔ تو باقی اسی پریشانی کو دیکھتے ہوئے آج کا عمل آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ ایسے لوگوں کے لیے جو ہر طرف سے مایوس ہو چکے ہیں اور راستہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ بند ہو چکا ہے، کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جہاں سے وہ نکل جائیں اپنی اس پریشانی سے، اس مصیبت سے۔ جیسے کہ ایسا پرابلم آ جاتا ہے کہ قرض بہت زیادہ چڑھ چکا ہے اور جن سے آپ نے قرض لیا ہوا ہے وہ لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں یا آپ سے اپنا پیسہ جو ہے وہ واپس مانگ رہے ہیں اور آپ کے پاس ادا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا کہ کس طرح سے اس پریشانی سے نکلا جائے، یعنی چاروں طرف سے آپ کو دروازے بند نظر آ رہے ہیں اور آپ بالکل پھنس چکے ہیں۔ ایسے ہی اگر آپ کسی مقدمے میں پھنس گئے ہیں، یعنی کہ یہ مصیبت سے نکالنے کا ایک ایسا اتنی جلدی کام کرنے والا عمل ہے جو آج آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ کو اسی ٹائم جب آپ یہ عمل کریں گے، کچھ ہی تھوڑا مطلب اتنا تو ٹائم لگتا ہے نا کہ جب آپ پڑھیں گے 1 دن 2 دن 3 دن کے اندر آپ کو اس پریشانی سے یہ عمل، یہ وظیفہ نکال دے گا۔ اس کے ساتھ گارنٹی دی گئی ہے کہ آپ کر کے دیکھیں، اور بہت سارے لوگوں کا یہ آزمایا ہوا عمل ہے ایک رات میں، اور رات کو یعنی کہ انہوں نے یہ عمل کیا اور صبح وہ ان کے اگر کسی کو ایمرجنسی پیسوں کی ضرورت ہے تو یعنی کہ رات کو انہوں نے یہ عمل کیا اور صبح اپنے آپ اللہ تعالیٰ کی ایسی غیبی مدد انہیں ملی ہے کہ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے۔ یعنی کہ اس کے رزلٹ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ جنہوں نے پیسوں کے لیے کیا کہ پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا تھا، ابھی ایک ہی بار یہ عمل کیا اور اگلے دن ہی ان کو رزلٹ ملا۔ اب یہ ایسا ہے کہ جتنی طلب اور جتنی تڑپ کے ساتھ کوئی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اتنی ہی جلدی عطا کرے گا۔ بہرحال اس کے ساتھ 3 دن کا لکھا ہوا ہے کہ آپ 3 دن تک لازمی اس عمل کو کریں اور اپنی اس پرابلم کا ذکر کریں جس میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، اور یقین کریں کہ آپ 3 دن کے اندر اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، اس مشکل سے نکل آئیں گے۔ اللہ ایسی جگہ سے آپ کی مدد کرے گا کہ آپ خود بھی نہیں سوچ سکتے، کیونکہ اللہ کے لیے ہر چیز پاسبل ہے۔ بس آپ نے یقین رکھ کے اپنے یقین کو پختہ کامل رکھیں اور اس اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس وظیفے کو کریں اور اپنی پرابلم، اپنی حاجت اپنے رب کے سامنے پیش کریں۔ انشاءاللہ وہ آپ کو نکال لے گا مصیبتوں سے، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ یہ عمل شروع کریں، خواتین کے لیے خاص ہے کہ لگاتار 3 دن یہ عمل کرنا ہے، تو ایسے دنوں میں یہ عمل کیا جائے کہ بیچ میں ناغہ نہ آئے،
लगातार करना है, ठीक है। 3 दिन ज़रूर करें इस अमल को। और इसको आप अगर बहुत ज़्यादा जल्दी आपको रिज़ल्ट चाहिए तो फिर 1 दिन में 2 मरतबा करेंगे आप, ठीक है। और अगर एक बार भी कर लेंगे तो ठीक है, लेकिन जो पहले दिन टाइम सेलेक्ट करके आपने अमल किया है उस टाइम पर आप इसको दोबारा करेंगे। और रखना आपने एक टाइम ऐसे है कि या तो ये अमल आप रात में करेंगे या फिर आप ये रात सुबह करेंगे, ठीक है। अगर आपने 2 टाइम भी इस अमल को करना है तो एक बार आप फजर की नमाज के बाद कर लें और एक बार आप रात को इशा की नमाज के बाद कर लें, इस तरह से, ठीक है। 2 टाइम आपने इस अमल को करने हैं। इसके लिए आप अगर 2 टाइम आप कर रहे हैं और अगर आपने पहले दिन फजर के बाद किया है और एक टाइम पे आपने करना है तो फिर आप रोज़ 3 दिन करें या जब जितनी दफ़ा भी आप करना चाहें। आपको खुद जब इसका रिज़ल्ट मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा, फिर आप इसको बार बार भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो जब आप इस अमल को करेंगे, अगर आपने फजर के बाद किया तो फिर आप बाकी 2 दिन भी फजर के बाद करें, अगर इशा के बाद किया तो फिर बाकी 2 दिन भी इशा के बाद करें, या फिर दोनों टाइम कर लें, फजर के बाद भी और इशा के बाद भी, ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। अब आपने पढ़ना क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। टाइमिंग मैंने आपको बता दी है, डेज़ भी बता दिए कि कितने दिन करना है अपने अमल और किन किन पर्पस के लिए कर सकते हैं वो भी बता दिया है। और अगर आपकी कोई हाजत है, कोई मकसद है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं और आपको वो मिल नहीं रहा, मकसद हासिल नहीं हो रहा, तो उसकी नियत करके भी ये अमल कर सकते हैं। लेकिन ख़ास इसके साथ ये लिखा हुआ है कि ये फंसे जो मुसीबत में फंसा हुआ है और किसी मुश्किल में फंसा हुआ है या उसको कारोबार में इतना नुकसान हो चुका है कि उसको समझ नहीं आ रही कि अब वो क्या करे, या फिर कोई और ऐसी मुसीबत में फंसा हुआ है, किसी जगह कैद है और वो वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो तब भी यानी कि ये ऐसे मौक़ों पर किया जाने वाला अमल है कि फ़ौरी तौर पर अल्लाह की मदद हासिल करने का अमल है कि आप कहीं फंस गए हैं किसी भी जगह, तो वहाँ से निकलना चाहते हैं तो ये अमल करके देखें। इंशाल्लाह इस अमल से फ़ौरन ही आपकी मदद अल्लाह की आ पहुँचेगी। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले बावज़ू हो जाएं और बावज़ू होने के बाद अपनी उस मुसीबत का, अपनी उस परेशानी का ज़िक्र अपने रब से करें जान मास पर बैठ के, ठीक है। और अगर किसी नमाज के साथ कर रहे हैं तो फिर उस नमाज को पढ़ लें पहले, फिर उसके बाद अपने जब इस अमल को करना है अपने मकसद को अल्लाह के सामने पेश करें और फिर उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ लें, ठीक है। दुरूद शरीफ पढ़ना, कोई भी दुरूद शरीफ आप यहाँ पढ़ सकते हैं, इसके साथ लिखा नहीं हुआ कि आपने ये वाला पढ़ना है या वो पढ़ना है। आप दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं या कोई छोटा दुरूद शरीफ पढ़ना है, ये आपकी मर्ज़ी है कि 5 बार पढ़ें, 7 बार पढ़ें या 11 बार पढ़ें, ठीक है। इन तीनों में से एक तादाद रख लें, जितनी दफ़ा भी आप पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लें। फिर उसके बाद आपने कोई दुरूद शरीफ पढ़ा है, वो दुरूद इब्राहिमी चले आपने पढ़ लिया, वो पढ़ लिया आपने 3 बार, 5 बार, 7 बार या 11 बार, ज़्यादा से ज़्यादा, इनमें से जौन सी भी तादाद आपने पढ़ी है पढ़ लिया। उसके बाद फिर आपने दुरूद ताज पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे दुरूद ताज लिखा हुआ है कि दुरूद ताज को पढ़ना है और ये बहुत मुजरब दुरूद शरीफ है, यानी कि इसके साथ लिखा हुआ है कि इससे बहुत ज़्यादा यानी कि मसले मसाइल हल हो जाते हैं। इस दुरूद शरीफ की बहुत ज़्यादा बरक़ात है, इसको पढ़ने से बहुत ज़्यादा मसले मसाइल जो है इंसान उसमें से निकल जाता है, बहुत बाबरकत है। इसको आपने पढ़ना है और इसको आपने 11 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। 11 मरतबा दुरूद ताज, ये 5 सूरतें में मौजूद होता है, वहाँ से आप इसको देख के पढ़ सकते हैं। दुरूद ताज आपने पढ़ना है 11 मरतबा। पहले आप कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ेंगे अपनी मर्ज़ी से कि 3 बार पढ़ना है, 5 बार, 7 बार या 11 बार। फिर उसके बाद आपने दुरूद ताज, ये दुरूद ताज का अमल है और दुरूद ताज ही आपने पढ़ना है फिर बाद में 11 बार। पहला दुरूद शरीफ वो आप पढ़ेंगे वजीफ़े को शुरू करने से पहले और बाद में जिस तरह से कहा जाता है कि आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है वो पढ़ना है, लेकिन उसके बाद आपने ये दुरूद ताज पढ़ना है और इसको भी आपने 11 मरतबा, इसकी तादाद लिखी हुई है कि ये पढ़नी है आपने। और फिर इसको मुकम्मल करने के बाद फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने सूरह अलम नशरा पढ़नी है, ठीक है। पहले दुरूद ताज 11 मरतबा पढ़ा जाएगा, फिर उसके बाद सूरह अलम नशरा पढ़नी है। एक बार बिस्मिल्लाह शुरू में पढ़ लें, इसके साथ ये लिखा हुआ है कि एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ लें, उसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और आप 33 टाइम सूरह अलम नशरा पढ़ेंगे।
33 टाइम सूरह अलम नशरा पढ़ेंगे और फिर जब आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा वजीफ़ा, फिर उसके बाद आप आइज़ क्लोज़ करके अपने रब से जुड़ने की कोशिश करें, अपने रब से मांगने की कोशिश करें। ख़ुद को ये तसव्वुर करें कि आप या तो खाना काबा में के पास बैठे हुए हैं। तसव्वुर में आप ऐसा इमेजिन करें कि आप उस वक्त अपने रब के किस कदर करीब हैं, अल्लाह ताला आपके किस कदर करीब है और वो आपको सुन रहा है, वो आपको देख रहा है। और आप ये दुआ, ये तसव्वुर करें, पहले इस तसव्वुर को मजबूत करें। ख़ुद को मदीना मुनव्वरा में या फिर खाना काबा के पास महसूस करें और अपने रब को याद करें। और जो दुआ, जो परेशानी अल्लाह के सामने आपने पेश की थी शुरू में नियत करके, उस परेशानी का ज़िक्र करें और यूँ फील करें कि आपकी दुआ जो है अल्लाह ताला तक पहुँच गई, वो सुन रहा है और कबूल हो गई। अपने इमेजिन में इस तरह रखें कि आप पर रहमत की बारिश हो रही है, रिज़्क़ की बारिश हो रही है। आप जिस मुसीबत से में फंसे हुए थे उसमें से निकल चुके हैं, अल्लाह की गैब से ऐसी मदद आ गई है और आप जो है उस अज़ियत से या उस परेशानी से बाहर निकल चुके हैं। इस तरह से तसव्वुर करें और फिर खूब दुआ करें। आइज़ क्लोज़ करके ज़्यादा अल्लाह के करीब हुआ जा सकता है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आइज़ बंद करके अपने रब से जुड़ के इर्द गिर्द से बिल्कुल बेखबर होकर आप ये अमल करेंगे। और इस ऐसे टाइम पर आप ये अमल करें कि जिस टाइम आपको कोई डिस्टर्ब ना कर रहा हो, ताकि आप सही तरीके से अपने रब से जुड़ सकें और फिर दुआ मांगें। और 3 दिन तक आप इस अमल को करें। अगर 3 दिन में आप 6 बार इस अमल को कर लेते हैं, यानी सुबह शाम से मुराद ये, एक बार आप दिन के टाइम करेंगे, फजर के बाद कर लिया, और एक बार आपने रात को करना है, ठीक है। अब आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ये नहीं कि आपने अगर मैंने आपको फजर कहा है तो आपने फजर के बाद ही पढ़ना है। आप इसे ज़ोहर के बाद, असर के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप इसे मगरिब के बाद करेंगे या फिर इसे मगरिब से पहले करेंगे। 2 टाइम जो आपने रखने हैं वो आपने इसके साथ ये लिखा हुआ है कि एक टाइम आपने तब करना है जिस वक्त सूरज मौजूद हो और एक टाइम जब करना है जब सूरज ना हो, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि या तो दिन की रोशनी में ये अमल होगा और या फिर रात के अंधेरे में ये अमल होगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि या मगरिब के बाद करें, एक मरतबा मगरिब के बाद पूरी यानी फजर तक आप इस अमल को एक बार कर सकते हैं, जौन सा भी टाइम आपने रखना है। और अगर दिन में करना है तो आप इसे असर की नमाज तक कर सकते हैं, यानी असर की नमाज के बाद तक, मगरिब से पहले यानी असर की अजान के बाद आपने इसको असर की नमाज के बाद कर लेना है इस अमल को, ठीक है। अंधेरा मतलब सूरज गरूब होने से पहले इस अमल को ख़त्म कर लें, जो एक टाइम आपने रखना है। इस तरह ये लिखा हुआ था, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि जिस तरीके से वजीफ़ा लिखा गया हुआ है मैंने इसी तरीके से आप तक पहुंचाया है। मैं खुद से रद्दो बदल नहीं कर सकती, आपको सेम तरीका बता दिया गया है। आप इस अमल को ज़रूर करें, करके देखें, अल्लाह ताला आपको तौफीक भी दे इस अमल को करने की, और इस अमल की बरकत से आप जिस मकसद के लिए भी इस अमल को करें, अल्लाह ताला आपको वो मकसद हासिल हो। अगर किसी परेशानी के लिए कर रहे हैं, उनसे निकलने के लिए कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपको उस परेशानी से, उस मुसीबत से निकाले। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करे। आप भी सब मुसलमानों के लिए, तमाम उम्मत मुसलमान के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी भी मुश्किलात को आसान फरमाएगा। आमीन।